प्लीज 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 आराम से यार, कोई नहीं है ना। सर आप लोगों को फोटो लेनी है, आराम से लेना। भाई पीछे क्या कर रहे हो भाई? चलिए आइए भाई थोड़ा जाने दो आप लोग। आइए से आइए सर को भाई जाने जाएंगे दो। आराम से लेना यार, स्टेज पे चले जाएंगे बड़े आराम से आप लोग। सर आप लग लुगा जाएगी आपके, गिर जाओगे आप यार। जबरदस्ती करते ना कि बाहर जाओ मेरा जरा आया एक सेकंड, आप आराम से लेना, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं आप। फोटो जितनी लेनी उतनी लेना प्लीज। एक मिनट सर सर एक सेंटर लोग हिलाओ मत। प्लेट दो ना, प्लेट मेरा ट्राइपॉड है भाई, जाओ मेरा ट्राइपॉड है, मैं तो उनको दिया था क्या हुआ मैडम आ जाइए कैमरा आगे कर दिया, आगे चला दादा। हाथ पीछे लो, हाथ पीछे लो, नीचे 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 आने दो उसको, आए ना नीचे नीचे, ठीक है हटा देंगे। हाँ हो गया भाई, हटा लो उसको नीचे नीचे। एक सेकंड सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट संकेत आ जाओ, संकेत आ पोस्टर में हो यार, तुम आ जाओ। दिनेश क्या करता रहता है यार, किस पे लाइट मार रही है? एक मिनट होल्ड ऑन सर, 1 सेकंड। चलिए ए रुक ना। डन 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 चलो फोटो बाकी भाई। फोटो फोटो क्या कर रहा था जीतू सुन हो गया आपको लगा वीडियो? तुम हटोगे तब होगा ना। 12 बहनों साथ में आ जाओ। एक सेकंड और एक वेट पांडे मोबाइल निकाल ले। हम निकालो क्या? रुको और क्लोज सामने यस Guys, while I welcome the very effortless, the supremely talented Mr. Anu Kapoor. Welcome, sir. Welcome. And I'm not making this up. I'm very happy to see you. आपको टीवी पे देखकर हम गाना गाते थे बचपन में. Now I'm watching you live, so I'm very happy to see you today. And now I would like to invite our next guest. ये वो है जिनके इशारे पे सेट पे सब नाचते हैं. I'm talking about the director of the film. You know, he has a very clear vision. उनकी एक फिल्म जो उन्होंने अभी कंप्लीट की है with the same production house, वो काफी चर्चा में है, बूंदी रायता. हम सब ने उनका नाम सुना है. वो कंप्लीट करने के बाद this is his second film, a very different concept.
Ladies and gentlemen, please put your hands together for the director Kamal Chandra. Thank you so much. And now it's time to invite those people जिनके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती थी. The very important people, the very important part of the film, the producers. And I would like to invite Mr. Ravi Gupta on stage. Sir, can I please have you on stage? Sir, mic लेकर ही आए. I think sir मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा. All right. And can I please have Mr. Virendra Bhagat on stage? क्या हम थोड़ी और एनर्जी के साथ तालियां बजा सकते हैं? Thank you. Mr. Sanjay Nagpal, can I please have you on stage? Alright, unfortunately he is not there. Can I please have Mr. Rajiv Deshpande on stage, please? And I am hoping अब बहुत सारी तालियां बजेंगी. Can we please have the very talented, someone who really loves acting, very passionate about it, very beautiful, Aditi Bhatperi. Can we please have her on stage? Sir, आने दीजिए, जगह बनाइए, आने दीजिए. And also I would request Miss Ishleen to come on stage. Can I please have you on stage? Guys, can we cheer for this cute girl here? अगर मैं स्कूल टीचर होती ना बहुत पनिशमेंट मिलने वाली थी. Anyways, all right, and now I would like to invite the person जिनका ये brain child था, जिन्होंने इस फिल्म को सोचा, and that's how it became the reality. Mr. Rajan Agarwal, the writer of the film. And lastly, I would like to invite the person who really have a lot of trouble controlling the production, the executive producer, Mr. Satyadev. Can I please have you on stage, sir? And I would also like to invite Mr. Piyush Singh on stage. Can we please cheer for him? Thank you so much. Firstly, थोड़ा सा मैं वहाँ चली जाती हूँ. I think we have a space crunch. So, okay, this looks better. Firstly, from bottom of my heart, congratulations to the entire team. And आज हम पोस्टर लॉन्च के लिए इकट्ठा हुए हैं. I know हमारे मीडिया दोस्तों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इससे पहले कि I give you all to the media, I have few questions that I want to ask you. And sir, मैं वहाँ आ जाती हूँ क्योंकि पहला सवाल आप ही से है. Sir, you have been in this industry for almost 40 decades. बहुत सारे characters किए हैं आपने. हमारे तो बहुत सारे favorite हैं. आपका कौन सा memorable character है? I don't watch films or television or OTT. I don't even watch news channels. So I'm an ignorant person. I can't say anything. Sir, I'm talking about your character. Yeah, I'm talking about my characters. I hardly watch my films. Well, this is the way I am. As long as my director and producers are happy, Kamal will realize this thing when we start shooting this film titled Hum Do Hamare Do. I don't even go to watch the monitor. काम किया, डायरेक्टर को खुश है, डायरेक्टर शॉट से खुश है, टेक से खुश है, प्रोड्यूसर खुश है, बस थैंक यू वेरी मच. So you are the director's actor. मैं काम करने के बाद वहाँ तक ठीक. मुझे लगता है ये बेस्ट अप्रोच है. बट एज एन एक्टर एक और क्यूरियस हूँ मैं सवाल पूछने के लिए कि मतलब जब हम नए होते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत मेहनत करते हैं रोल को प्रिपेयर करने के लिए टू गेट इनटू द कैरेक्टर. सो आफ्टर सो मेनी इयर्स क्या अब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हैं? Every moment is a moment to work hard, and every project is a project not to take casually at all. I'm not that talented कि मैं
एक फिल्म को सीरियसली लूं और दूसरी फिल्म को सीरियसली नहीं लूं। मैं एक स्ट्रगलर हूं और मेरे लिए जो भी मेरे प्रोड्यूसर होते हैं, मेरे जो भी डायरेक्टर होते हैं, वो मेरे पास बहुत विश्वास के साथ आते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी रोल मुझे ऑफर किया है, जिस रोल को मैंने स्वीकार किया है, उसको अन्नू कपूर बहुत अच्छे ढंग से करेगा, इस आशा के साथ आते हैं। मैं उनकी आशा और उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मुझे हर रोल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं उतना फॉर्चुनेट नहीं हूँ जिसके लिए कोई भी चीज, कोई भी सुख, कोई भी प्लेजर बड़ी आसानी से आ जाए। मैं तो स्ट्रगलर हूँ और उसी रूप में मैं जाना चाहूँगा। स्ट्रगलर है हम सब, मैं तो स्ट्रगलर। Sir, I think आपकी यही honesty की वजह से we all love him, isn't it? Ladies and gentlemen, I think we should have a round of applause for him. Thank you, sir. And alright, sir, before we move ahead, आपसे पहले मैं एक सवाल कर लेती हूँ कि जब मैंने इस फिल्म का कॉन्सेप्ट सुना था तो मुझे काफी अलग लगा। Of course, I liked it. I can't speak much about it. But आपको इस कॉन्सेप्ट में, स्टोरी में ऐसा क्या लगा that you thought that I should produce this film? इस फिल्म में जब डायरेक्टर अपने जो राइटर साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छा स्टोरी लगा मेरे को, और कुछ मैसेज है समाज के लिए कि हमें कुछ नई चीज़ करनी चाहिए, और बाकी आपको फिल्म में समझ में आएगा क्या है, कैसा है। Not to be revealed much. I think ये हमें और ज़्यादा curious कर देता है. But sir, one last question. Okay, I'm sorry. हमारे media friends. This is the last question. Okay, sir. आपकी जो last film थी वो काफी चर्चा में थी. बूटी रायता you've just completed. आपने पहले जो films करे हैं वो अलग genre के थे. ये जो concept है, ये जो genre है, it's very different. So, can I say that are you like experimenting or you trying different things, or what made you choose this film? एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, रियल सिनेमा का टाइम चल रहा है इस समय पे, हम लोग कितना रियल घुसाएंगे ऑडियंस की तरफ नहीं अच्छा है, तो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते। हाँ, ये पॉपुलेशन इस समय थोड़ा सा एक वर्स्ट कंडीशन पे चल रही है वर्ल्ड के अंदर, तो हम चाहते हैं एक फनी वे में एक सोशल मैसेज पे थोड़ा प्रेजेंट करें, बस एक छोटी सी यही थैंक यू सर, और हम भी आशा करते हैं कि आपकी कोशिश सफल रहे। एंड yes, so I think there is one more question I would like to ask to us, sir. Sir, आपने पहले भी फिल्म्स प्रोड्यूस की है, इस स्टोरी का I think what made you produce this film? आपको ऐसे क्या चीज इस स्टोरी में अच्छी लगी, and how are you feeling about the poster launch today? ये एक रवि जी ने भी बताया कि मैसेज है समाज के लिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और राजन जी ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है इस स्टोरी को। बाकी ये सस्पेंस है, जब ये आप देखेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। और ये हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बोला कि ये जो पॉपुलेशन है ये बड़ा मेजर पॉइंट है आज के टाइम में, जो हम लोग बाहर कंट्री जाते हैं और अपने देश को देखते हैं तो बहुत फर्क है। और हम लोग की ये भी एक यूनिट की मतलब भावना है कि किसी भी धर्म को हम लोग ठेस नहीं पहुंचाएं, लेकिन ये मैसेज जरूर दें पूरे इंडिया के लोगों को और भी लोगों को। इस मूवी के बाद ये मैसेज मिलेगा कि हम दो और हमारे 12 से क्या क्या फर्क होता है, और बहुत सारी बातें तब समझ में आती है जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, बाहर कंट्री देखते हैं, देखते हैं देखो ये ऑस्ट्रेलिया और कंट्री कितनी स्मॉल पॉपुलेशन से खुश है और हमारे यहाँ आज की बहुत सारी सुविधाएं से वंचित रह जाते हैं। तो ये मूवी से लोगों को एक मैसेज आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अन्नू कपूर साहब तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं अंताक्षरी में, जैसा आपने बताया। Thank you so much. And how you feeling about the poster launch today? क्या एक्साइटमेंट है, हमारी जो ऑडियंस है इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? ऑडियंस बड़ा ही जबरदस्त मूवी है ये। अभी कुछ टाइम पहले भी मैं देख रहा था कि अभी हिंदी सिनेमा में क्या हो रहा है कि हम लोग कोई अच्छी मूवी नहीं बना पा रहे थे, जिसके साउथ में जो भी 3-4 मूवी बड़ा सुपर डुपर हिट हुई आपने देखा। तो ये बड़ा अच्छा स्टोरी राजन जी ने लिखा है और कपूर साहब हमारे मेन लीड रोल में है और उनकी एक्टिंग के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त। हो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उनकी एक्टिंग को और देखते देखते बड़े हुए हैं, तो काफी कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी में और बड़ा मजा आएगा और बड़ा ही मैसेज भी है। Thank you, sir. We all are rooting for your project, for the film, and we are eagerly looking forward. And यहाँ पर मेरे सवाल इनके साथ खत्म होते हैं। And alright, so यहाँ मेरे
Alright, ladies and gentlemen, there are two very important people जो आज हमें join नहीं कर पाए poster launch पे, Mr. Manoj Joshi and Miss Ashwini, Miss Ashwini Kalsekar. But वो किसी वजह से हमारे साथ join नहीं कर पाए. But ladies and gentlemen, we have this wonderful evening and let's move on for our poster launch today. So are you all ready for that? Great, I love that energy. Whoa! हम दो हमारे 12. That's a very catchy line. थोड़ा दिख रहा है। और नीचे साथ में आइए ना, पोस्टर के पास आइए। And can I please request the entire team of हम दो हमारे 12 to join us on the stage for the poster launch? अरे आएंगे नहीं ऊपर। Can I please request all the entire star cast, all the beautiful girls behind to join us on stage? Please रास्ता बनाइए लड़कियों के so that they can join us. रोहित आप भी जाओ। सीट पे भी भाई दिख रहा है। रोहित दवाई लिया कि नहीं? दवाई लिया? दवाई लिया? चलिए रेडी, चलिए अरे 12 तो दिख ही नहीं रही। आधे तो दिख रहे हैं ना। सुशील चल, जलवा दिख रहा है। अरे फोन आ रहा है। चलिए रेडी रेडी, रेडी 1 2 3। वाह वाह वाह। सर सेंटर लुक। सर अन्नू जी थोड़ा अंदर, हाँ बस बस बस। ओके सामने सर डाउन लो। अरे डिस्को लाइट बंद करो। अभी लाइट बंद रहा है, क्या पता। अबे ब्लू वाली लाइट बंद कर दो ना यार, चेहरे पे जा रही सारी। अरे उनके चेहरे पे खराब नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। ओके सर, थैंक्स सर। छोटा ग्रुप दिनेश, छोटा ग्रुप दिनेश जाएगा। दिनेश छोटा कैसे करोगे भाई? अरे टेबल आधा आधा दर्जन। अरे वो ले बस आगे ले लो। अरे उधर फोटो हो रहा, हटो। अरे शाहरुख, ओ भाई ओ पांडे जा, पांडे बैठने टाइम में पण ठीक है यार। अरे सर जज बैठेंगे सर। तेरा ही होता है। हेलो लगे वार्ड दे यहाँ पे। राकेश माइक देना। हेलो राकेश एक सेकंड हटना। पांडे भाई वीडियो के लिए दो, थोड़ा जगह दो। वो निकल गया।
सबसे पहले कैप्टन ऑफिस से जानना चाहूंगा सर, सब्जेक्ट जो आप लोगों ने था पोस्टर में समझ में पॉपुलेशन के ऊपर किया है, अगर थोड़ा सा बताना चाहे आप फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को। बहुत ज़्यादा रिवील तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा भी मैंने बताया स्टेज पे एक सोशल मैसेज है। आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन इतना बड़ा एक चीज़ बनती चली जा रही है, तो हम लोगों ने वो एक अपनी स्टोरी को थोड़ा फनी, थोड़ा सा एक स्लाइस ऑफ लाइफ के जरिए ना आगे बढ़ाने की कोशिश की। बस ये। और पोस्टर को देखते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पोस्टर में दिखाई देगी, अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें एक धर्म को लेके, जो अपनी कंट्रोवर्सी की बात है ही नहीं, ऐसा कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल है ही नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे जो स्टोरी मिलती है हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बस कंट्रोवर्सी का तो कुछ भी नहीं। और सर एज अ डायरेक्टर रजत सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, अनु सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किया। मैं तो बहुत जूनियर हूँ सर से मैंने उल्टा सीखा है काफ़ी कुछ। अभी तो काम करना बाकी है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। अनु सर, आपसे जानना चाहूँगा इस तरह के सब्जेक्ट पे कितना चैलेंजिंग हुआ आपके एज ए एक्टर, अगर कुछ इस तरह का सब्जेक्ट ही नहीं, हर सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है भाई। काम को अगर आप गंभीरता से समझेंगे, कैजुअल नहीं लेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जो जिनको कैजुअली काम सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हमें तो एक एक पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, एक एक रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ा है। तो कोई भी फिल्म हो, अभी कमल चंद्रा की फिल्म है, अगले साल ये दूसरी कोई फिल्म बनाएंगे, वो ऑफर करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो हर फिल्म के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्रोड्यूसर साहब से एक सवाल है मेरा, अनु सर को आपने कास्ट किया है जो अपने आप में टैलेंट के प्रतिभा कुट के भरी है, कितना आसान है मुश्किल होता है अनु सर को रोल देना और अनु सर का फिल्म में आना, क्या कहना? अनु सर का हमारी फिल्म में आना हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इनके जैसा एक्टर शायद हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन इन आवर इंडस्ट्रीज़। हम बहुत खुश हैं इनके साथ काम करने के लिए, हम बहुत उत्साहित हैं, हमारी पूरी टीम। और हमारे साथ में 2 और एक्टर्स हैं, मनोज जोशी जी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ में, वो भी, एंड अश्विनी कालशेखर भी हैं। वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं, वो भी शूट पे कहीं बिजी हैं हैदराबाद में, एंड मनोज जोशी दिल्ली में बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। सर की कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर नजर डालें, या काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। राइट। ही इज़ अ लीड। कुछ बता सकते हैं अगर दर्शकों को? ये बताएंगे। कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि सर के साथ चीज़ें बहुत आसान हो गई। जो हम लोग सोच रहे थे, बहुत सर इतने एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर है, तो जो बहुत मुश्किलें चीज़ें थी, बहुत सर ने बिल्कुल उनको आसान बना दिया। ये देखिए, आप सभी पूछेंगे, लेकिन अपने आप में कमल चंद्रा जी का और रवि गुप्ता जी का जो प्रोजेक्ट है ये, और उसका जो टाइटल है, वो अपने आप में इतना सिंबॉलिक होते हुए भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत क्लियर है। हम 2 हमारे 12। आप समझे, मुट्ठी खुलने से पहले अंदाज़ा तो हो गया है कि इस मुट्ठी में चांदी है, सोना है कि डायमंड है, तो वो टाइटल अपने आप में बता देता है और अंदाज़ा लग जाता है। वैसे कभी मुझे मैसेज एक मिला था अपने लोगों के बारे में, हम सब के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, तो मैसेज ये था कि हम जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, हम स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं। सही बात। हम इंडियन स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, तो शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए, तो बोलो किसी दिन खुल के सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। आप समझे ना, ये है। अनु सर बहुत लिमिटेड देख पा रहे हैं आपको, स्क्रिप्ट्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके चाहने वाले आपको और देखना चाह रहे हैं फिल्म में, बट एनी काइंड ऑफ कुछ इन चुन के चीजें कर रहे हैं, वैसे कुछ है अभी रिसेंट टाइम में? कोशिश की है कि अच्छा काम कर सके। अब हमारी शक्ल सूरत ऐसी तो है नहीं कि हर आदमी दूसरा देखेगा हीरो बना देगा, डांस कर लेगा। ना हमारे पास शक्ल है, ना सूरत है, ना टैलेंट है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। सो जो मिला उसको ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है। और आज ये हम 2 हमारे 12 हैं, लेकिन आज ही मेरी अमेज़ॉन ओरिजिनल सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसका नाम है क्रैश कोर्स। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो जब काम करो, अच्छा काम करो, बस आप देखिए उसको। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से, सर इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और
अगर जैसे मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रही है, अगर सर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये बेसिकली जो मूवी है जो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं, इसका जो टाइटल है, अन्नू सर ने भी बताया कि बड़ा ही मतलब इसकी टाइटल ज़बरदस्त है, अट्रैक्टिव है अपने आप में, हम दो हमारे 12। और सर ने बोला भी कि अगर हम लोग इस तरह से अगर शर्मा सर्वी में 130 करोड़ हो गए तो कुछ टाइम में अगर ये ऐसे मैसेज नहीं गया देश को तो ये 200 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा और फिर हम लोग चाइना से भी ऊपर होंगे। तो ये बड़ा मैसेज मतलब अपने आप में हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा है कि लोगों को इस मूवी को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई हमारे 2 होने से कितना फ़र्क पड़ता है और हमारे 12 होने से कितना फ़र्क पड़ता है। सर, आपके पिछले इवेंट में भी मैं मौजूद था और यहाँ पर भी हूँ। आपने एक चीज़ जो कही है कि आप एक स्ट्रगलिंग एज एन आर्टिस्ट खुद को समझते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त आप रहे हैं, उसके बावजूद क्या लगता है ये एक डाउन टू अर्थ रहना, अपने आप को आईने के साथ एकदम क्लियर रखना कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होती नहीं है? क्या है भाई रोल पसंद करते हैं। देखिए अभी क्या मैं 67 इयर्स का हो गया, तो इन 67 साल के स्ट्रगल के अंदर एक चीज़ सीखी है कि जब आपका टाइम आ रहा है और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं तो इन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो माँ ने कहा था कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तब भी इनको प्रणाम और सलाम करते चलिएगा, जब उतरेंगे तब भी यहीं पे खड़े होंगे। आप समझे ना मेरी बात। सो जो आदमी आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि एक व्यक्ति, हम जब लंबी इनिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबी इनिंग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने खेली है, हाँ सारी फील्ड को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो खेली है जिसका जो अभी चली गई 6 फरवरी को, जिनका नाम था लता मंगेशकर। सबसे लंबी इनिंग उन्होंने खेली है, राज किया है लंबी इनिंग अपने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी उस सफलता को अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया। आप समझे, नॉर्मल। उसके बाद इनिंग जो अभी उनकी बहन है आशा भोसले, और तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन आते हैं। अभी उनकी जितनी लंबी इनिंग है ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, ठीक है। अभी अगले महीने नेक्स्ट 2 महीने के बाद वो 80 साल के हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लंबी इनिंग है, 1969 से स्टार्ट हुई थी, 73 से अगर मानूंगा मैं तो अगले साल कितने साल हो जाएंगे, बहुत लंबी इनिंग, बहुत पन्नी। आप सोचिए 80 साल की इनिंग, हाँ। तो लंबी, आप तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, सफलता मिली, तारीफ मिली, इधर से इधर चली गई, थैंक यू वेरी मच। तो वही ठीक रहता है। बाकी तो बहुत सारे लोगों को देखा जिनको अभी इन 40 सालों के अंदर न जाने कितने आए हीरो चले गए, न जाने कितनी हीरोइन आई चली गई, न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर अपना पोटेंशियल है और जो हर संभाव से, मतलब अपनी सक्सेस के टाइम पर, अपने फ्लॉप होने के टाइम पर चीज़ों को कूलली लेता है, उसके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं आगे बढ़ने के। कमल जी, आपसे एक सवाल है, डायरेक्टर बहुत यहाँ कमल जी हैं, वो पैसे वाले हैं, ये डायरेक्टर डायरेक्टर जो होता है बहुत मेहनत करता है, किसी भी स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए, पूरी टीम को चलाने के लिए, प्रोडक्शन एवरीथिंग, एडिट से लेकर सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी आपके जीवन में, पिछले फिल्म में ऐसी भी रही है, तो कितनी कुछ मेहनत, जब कुछ ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट चली गई कहाँ पे, मैं डायरेक्टली नाम लेना चाहूँगा, माला मूवी जो थी, इसके बाद यहाँ पे पुराने खड़े मुर्दे क्यों भाग रहे हो? नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि एक मेहनत बहुत लगती है डायरेक्टर की, हर चीज के स्क्रिप्ट पूरी टीम की। पर अभी ऐसी उसके कुछ होता है बाद तो चीजें बहुत मैं back चली गई। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। उसके पहले अभी इन्होंने हमारे साथ एक और फिल्म किया, हमने बूंदी रहता, इसका हमने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था और अभी अगले महीने हम उसको रिलीज कर रहे हैं। उसमें हमने रवि किशन जी हैं, उसमें हिमांश कोहली है, सोनाली सहगल है, शिल्पा शिंदे है, राजेश शर्मा जी हैं, एंड और भी काफ़ी, और कौन अपने अलका अमीन है, राजेश शर्मा और गोपाल दत्त है, नीरज सूद जी हैं। अच्छी फिल्म बनी है वो। तो अगले महीने आप लोग, हम लॉन्च कर रहे हैं उसको, रिलीज कर रहे हैं OTT पे, तो आप लोग से और रियल कॉमेडी उसको, और रियल कॉमेडी है सर, रियल कॉमेडी फिल्म है, प्लस उसके अंदर में हम एक बाप बेटे का क्या रिलेशन होता है वो हमने उसको दिखाया है। और हमारे डायरेक्टर काफ़ी
टैलेंटेड हैं, इसलिए हमने इनको सेकंड टाइम मौका दिया हम लोग हमने फिर इनको हमारी इनके साथ ही यूनिट काम कर रहे हैं। जो ये न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट राधिका जी फिल्म है, ये सेकंड मूवी बना रही है और एक थर्ड भी हम लोग बायोपिक बड़ा जल्दी बनाने जा रहे हैं। वो भी बड़ी अच्छी डिफरेंट स्टोरी पे मूवी है वो भी, और वो भी सस्पेंस है। आप लोगों को फिर से इनवाइट किया जाएगा और वो एक सस्पेंस को हटाया जाएगा। कमल जी इतना टैलेंटेड हैं, तभी हमने इनको मौका दिया और थर्ड मूवी में भी बड़ा जल्दी मौका देने वाले हैं। और भी अभी एल्बम भी शूट करके आए इन्होंने, बड़ा अच्छा, एक दो एल्बम और भी बड़ा अच्छा शूट किया इन्होंने, तो अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं बता देता हूँ बाला फिल्म का क्या स्टेटस है। अभी मेरा केस है हाई कोर्ट में ही है, ठीक है, और अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ हो गया था, फिर से शुरू हो रहा है, तो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, पहुँचूंगा आगे। क्या बात है। ज़्यादा खुशी। मेरा एक सवाल आपसे, एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब भी मूवी रिलीज होती है, उससे पहले सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हैशटैग निकलते हैं, हैशटैग बॉयकॉट। हाल ही में हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा की भी निकली है। अगर आपकी मूवी की ऐसी हैशटैग निकली तो कितना एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है वो टाइम के लिए? भैया, आई नो नथिंग अबाउट ब्लडी हैशटैग और आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बस आई नो वन थिंग, that for the last 11 days, for the past 11 days, I have been busy doing PR for my Amazon original series called Crash Course, जो आज ही रिलीज हुई। उसके कमाल के रिव्यूज़ हैं, तो उसमें ही मैं बिज़ी था। मेरा काम है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे पैसे इसलिए दिए हैं, डायरेक्टर ने भरोसा किया है, आपको काम है आप प्रमोट कर दीजिए जी। हमारा काम है प्रमोट का। वो हैश टैग है कि हैश है कि टैग है क्या, मेरे को पता नहीं। आई डोंट नो, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आई एम टू बोरिंग अ पर्सन to be bothered about. Sir, how would you react on hashtag लाल सिंह चड्ढा जो आमिर What is that? आमिर खान की मूवी आने वाली है? I don't watch movies. I don't watch movies. I don't know. No comments in other movies. नहीं, no comments नहीं। मैं मूवी नहीं देखता, ना आपकी ना पढ़ाई। बात करता, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है भाई, मुझे सचमुच पता नहीं, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो कौन है भाई। I have no idea. सर, इसके अलावा अभी मेरे कलीग ने पूछा था कि काफी चूजी, हाँ, नहीं पूछे, आप सवाल बिंदास होकर पूछे। काफी चूजी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, कोई भी स्क्रिप्ट चुनने से पहले क्या खास बात देखते हैं, अगर उस बारे में? उस जो स्क्रिप्ट जिस प्रेमाइस की है, क्या राइटर ने और डायरेक्टर ने उस प्रेमाइस को, उस स्टोरी को जस्टिफाई किया है, नंबर वन। दूसरी बात, वो जो कैरेक्टर मुझे ऑफर किया जा रहा है, उसकी कैरेक्टर स्कीम, एक कैरेक्टर स्कीम एक टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं है यहाँ पर। कैरेक्टर स्कीम जो है वो डिवाइस है कि वो कैरेक्टर उस फिल्म में, उस प्रोजेक्ट में किस वजह से है और कितना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, लेंथ होने के बावजूद भी वो लूज कैरेक्टर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पावरफुल कैरेक्टर हो जाता है। सो कैरेक्टर स्कीम अगर इम्पोर्टेंट है, उसका कैरेक्टर स्कीम मतलब उस कैरेक्टर का प्लेसमेंट क्या है स्क्रिप्ट के अंदर, ये तीनों चीज़ों चारों मिल के जो है मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे करना है। मैं अभी जैसे अभी साइन किए ड्रीम गर्ल 2, तो ड्रीम गर्ल 2 मैं बेशक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन डायरेक्टर राज शांडिल्य मुझे एक साथ काम कर चुके हैं, तो कह लें अभी मेरे पास वो वक्त नहीं है, वो पहली पिता बनने वाले हैं, तो कह लें मैं भैया मैं आपको नरेशन दे देता हूँ। तो ही गेव मी नरेशन 1.5 आवर, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं तो 15 मिनट से सुनता नहीं, लेकिन विश्वास होता है। अब इनके ऊपर पहली बार काम कर रहे हैं, अगली बार इनसे पूछेंगे भी नहीं क्या है, विश्वास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार ये मेरे कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करेंगे, मुझे प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे सारी की सारी। ड्रीम गर्ल 2 में और ज़्यादा बड़ा हो गया, वो जो कैरेक्टर ड्रीम गर्ल में था वो और ज़्यादा, उससे 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब सोच समझ के उसने लिखी है वो सारी की सारी चीज़ें। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही मेरे जैसे व्यक्ति एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। मैं रिजेक्ट करने में बड़ा मास्टर हूँ। कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं। पॉपुलेशन की बात है भाई, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या ना कुछ छोड़ देंगे, कंट्रोवर्शियल नहीं है। नहीं, आप मुझे बताओ, आप क्या कंट्रोवर्सी चाह रहे, क्या चाह रहे? थोड़ा जोर से बोलेंगे भाई, आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी में तो बैन है, मतलब तो हमारे ये स्टोरी कहाँ है, उसके बारे में ये यूपी की स्टोरी है। यूपी में वहाँ पे तो योगी जी ने कर रखा है, हम लोग हमारे भाई उन्होंने क्या कर रखा है पता नहीं है, बड़ी देखिए, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, इधर उधर की बात ना घुमा के
एक डायरेक्टर के पास एक सब्जेक्ट आता है, एक राइटर सब्जेक्ट को लेके आता है, एक आइडिया को लेके आता है, डायरेक्टर और राइटर के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस देखेंगे, वहाँ बैन है, वहाँ बैन नहीं है, ये वो नहीं है सब्जेक्ट। ये विट और ह्यूमर के माध्यम से, विट और ह्यूमर के माध्यम से, मैं कॉमेडी भी नहीं हूँ, विट ह्यूमर विनोद प्रिय के माध्यम से एक गंभीर समस्या को समाज के सामने लाने का प्रयास है। जब फिल्म बन जाएगी तब आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस जोन में काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब से ये जानना चाहता हूँ मैं कि आपकी दो बैक टू बैक फिल्म से आ रही है, एक तो बूंदी रायता और हम लोग हमारे दो, ये दोनों किस तरह से आप रिलीज करने वाले, कोई डेट है, कुछ ऐसा बताइए ऑडियंस को, क्योंकि हमसे अनाउंसमेंट सुने, रिलीज डेट हम चाहते हैं जानना, और कौन से रिलीज डेट या रिलीज डेट हमारा बूंदी रायता का हम प्लान कर रहे हैं सितंबर का प्लान चल रहा है हमारा। एंड हम तो हमारे 2023 में उसको रिलीज करेंगे। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन दोनों से जानना चाहूंगी, बच्चे लोग को इनको कैसा लगा आनंद जी के साथ काम करके, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अभी तो काम करेंगे, अभी तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ अच्छा ही लगेगा। एक्साइटमेंट कितनी है इनको? बच्चों से क्या पूछ रहे हैं अभी? बोलिए। मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज मैंने उनकी ड्रीम गर्ल मूवी देखी थी, तब से मैं उनकी बहुत बड़ी fan हूं। और एक्सट्रीन हमारी एक और मूवी में ऑलरेडी काम कर चुकी है, बूंदी रायता में, जो बताया अगले मंथ आने वाली है, और बड़ा अच्छा रोल इसने किया है, आप देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, टैलेंटेड भी है। आज आप लोगों के सामने ये पहला दिन है, पोस्टर लॉन्च का दिन है। ये पोस्टर लॉन्च की पोस्टर लॉन्च का अभी प्रथम चरण है, इसलिए अगर आप इसके अंतिम चरण की बात करेंगे कि फिल्म ने कैसा शेप लिया है, तो प्रथम चरण है भाई, फर्स्ट स्टेप है। उस पर हम सब लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर ने, रवि गुप्ता जी ने आप सब लोगों को आमंत्रित किया, आप सब लोगों को सहयोग चाहिए। पोस्टर लॉन्च हो गया, हम 2 हमारे 12, बात खत्म हो गई, बस बड़ी सिंपल सी बात है। और कुछ पूछिए? पोस्टर लॉन्च में और क्या चाहिए आपको? तो सनी बहन सनी लियोन हुई है लेकिन सर पोस्टर लॉन्च ही कर ले भाई, डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाएगा फिर। वो कह रहे कि सर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ध्यान रखना भाई। सर सनी लियोनी को बोला ना, कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारे पास। वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप आए, हमारी बातें सुनी, बहुत धन्यवाद। हमारे पास टैलेंटेड गर्ल्स ये सब सेलेक्ट हुए मूवी के लिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये इस जगह के ऊपर आप सब लोग, ये ना, ओके, कैन यू लुक एट द कैमरा? भैया कैमरा लगा भाई, अरे भाई सत्ती, एक कैमरा तो लगाओ। दिख रहा है कैमरा आपको? दिख रहा है कैमरा? आ जाओ। कुछ है क्या? कंट्रोवर्सी होगी कुछ? बड़े स्टार की फिल्म है? अरे माँ की, शाबाश शाबाश, चल। साइलेंस, एक्सक्यूज मी, साइलेंस। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो कंपनी न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट राधिका जी फिल्म है, ये नए टैलेंटेड लोगों को भी बड़ा मौका दे रही है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करें और उनको लाकर पर्दे पे दिखाएं। इसीलिए मुझे चुना गया है कि हम तो हमारे 12 लोगों की टीम सर को नहीं, टैलेंट को बढ़ावा दो भाई, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।